ब्रदर अरुण जी, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, आपके बेटे के हुए, आपके हुए। आप बताएं लोगों को ताकि वे लोग भी आशीष पाएं। সকলকে জয় যিশু। তো 2016-তে আমি প্রভু ঈশ্বরকে জেনেছি, 2016 ডিসেম্বর। তো আমার তো 2016-তে তখন আমার ছেলে ক্লাস 7-এ পড়ে। সেই সময় আমার ছেলের একটা খুব বারবার একটা অসুখ হয়েছিল। তার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, তার হাড়ের, তার বুকের উপরে একটা মাংসের পিণ্ড হয়েছিল এবং তার হাড়টা ইনলার্জ হয়ে যায়। তার সে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট ভোগে, একটা সিঁড়ি উঠতে পারতো না। বহু ডাক্তার দেখানো হয়, এমনও হয় যে রাত্রিবেলা হয়তো আমাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হতো, সেখানে অক্সিজেন দিতে হতো। সে ঘরে এসে ছাদের মধ্যে দিন কাটাতো, রাত কাটাতো। তার মাকে বলতো যে মা তোমার এই নিঃশ্বাসটা আমাকে দাও। এতটাই অবস্থা খারাপ ছিল, সে সেবার পরীক্ষা বসতে পারেনি। ডাক্তার বললো যে ওর যে রোগটা এইটা তো প্রায় 60 বছর উপর রোগে হয়। তা ডাক্তার বলে দেখুন এই রোগের চিকিৎসা সেরকম একটা নেই, তবে এই একটা মেডিসিন আছে, সেই মেডিসিনটা ওকে সারা বছর খেতে হবে, মানে সারা জীবন যতদিন বেঁচে থাকে। তারপর এবার আমার স্ত্রীও ভেঙে পড়ে, আমিও ভেঙে পড়ি। তা হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রী তখন প্রাইভেট টিউশন করে, তো রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিল একটা ছোট একটা মন্ডলী ছিল, আর সেখান দিয়ে একজন সিস্টার আমার স্ত্রীকে দেখে বললো কি হলো তোমার, কি হলো চোখের তলায় এরকম কালি পড়েছে, এই পড়েছে। তখন বলছে আমার ছেলেটা খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। তখন বলছি যে তুমি একটু আমাদের মন্ডলীতে এসো। তারপর 2 দিন পরে দেখি ওখানকার থেকে 3 জন সিস্টার আমার বাড়িতে যায় এবং আমার ছেলের জন্য প্রার্থনা করে। সে প্রার্থনা যারা সামনে থাকবে তারা বুঝবে যে প্রার্থনা কাকে বলে। এবং যখন প্রার্থনা করতে বলে গেল ওরা, রাত্রিবেলা আমার ছেলে দেখি আস্তে আস্তে করে 1 দূরে করে সিঁড়ি নামতে আরম্ভ করলো। তারপরের দিন আস্তে আস্তে দেখি সে সিঁড়িতে উঠছে নামছে। সে বলছে মাকে বলছে মা আমি সিঁড়িতে উঠতে পারছি, নামতে পারছি। সেই ছেলে এখন বিএসসি ফার্স্ট ইয়ার পড়ছে, সে এখন দমদম কলেজে পড়ে, সে টিউশন যায়, সে সাইকেল চালায়, সে 10 তলা 12 তলা এখন ব্যাপার না ওর কাছে। প্রভু যিশু তাকে নতুন জীবন দিয়েছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করেছেন। সে এখন ওষুধ খাওয়া বহুদিন আগে বন্ধ করে দিয়েছে, তার কোনো মেডিসিন লাগে না। তার প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই তাকে এই নতুন জীবন দেওয়ার জন্য। তখন যদি ওর যদি অসুস্থ না হতো হয়তো আমরা তখন প্রভুকে জানতে পারতাম না। তা এই একটা। তারপরে দেখুন এটা বলে দিই হিন্দিতে, इनके बेटे क्लास 7 में थे और इनके हार्ट में एक्स्ट्रा फ्लैश इनके सीने पे थे, जहाँ से वो सांस नहीं ले पाते थे। वो हार्ट इनलाज था। तो आप जान सकते हैं कि जब हार्ट इनलाज होता है तो कितना मुश्किल उस बच्चे को पड़ता है। उसके कारण वो ना सीढ़ी चल पाता था, कुछ कदम भी नहीं चल पाता था। और वो कहता था माँ आपका श्वास दो ताकि हम श्वास ले पाए। परमेश्वर कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने अपने श्वास हमें दिया ताकि हम जीवित रहें।
और ये कहते हैं माँ अपने श्वास को दो। ऐसा होते हुए जब सिस्टर्स जो प्रार्थना करते थे, मैंने देखेगा पूछे क्या हुआ, तुम्हारे आँख के नीचे क्यों कालापन पड़ गया, तो इसने बताया अपने बेटे के बारे में। तो वो लोग आए घर पे प्रार्थना करने के लिए, और उस प्रार्थना से अद्भुत चंगाई मिली, जहाँ इसके बेटे पूरे चंगा हो गए और वो चल फिर सकते हैं, सीढ़ी के ऊपर नीचे हो सकते हैं, और अभी बीएससी कर रहे हैं, वो साइकिल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, दवाई तो छोड़ ही दी, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रथम डॉक्टर हैं। वो अपने अद्भुत दवाइयों से उसके बेटे को ठीक किया। धन्यवाद। आमीन। दूसरी दवाई सुनते हैं। 2020 সালে যখন খুব ঝড় হয়, আমি আমাদের বাইরে তখন কি হচ্ছিল আর কি, পূর্ণটাকে দিয়েছিলাম, তা কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল, তা প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। এবার আমি একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতাম, একদিন সাইকেলটা বার করতে গিয়ে সাইকেল জাস্ট প্যাটেলে একটুখানি পাটার মধ্যে খোঁচা লেগেছিল, সামান্য ছাল লেগেছিল। তারপরে আমি যাও করে রাজারা করতো, আমি প্রথম না বুঝতে পারিনি, তারপরে আমার কস মুখে বেরোচ্ছে। তারপর আমি যে বিআরটি চার্চে ছিলাম আর কি, ওখানকার ব্রাদার ডেভিড, উনি মেডিকেল লাইনে আছেন, তো ওনার সঙ্গে কথা বলার পর উনি আমাকে 2-3 দিন মেডিসিন দেন, খাওয়ার পর কমে গেছে। এইবার যখন ঝড়টা হলো, আমফান লাস্ট যে ঝড়টা হলো, ঝড়ের পরে আমার ঘরে পুরো জল ধরে গেছিল, প্রায় 1 হাঁটুর উপর জল, 16 দিন সেই জল ছিল ঘরের মধ্যে। তা ওই জলটা যখন লাগে, ওটা একটু আস্তে আস্তে ওটাকে আরো ছড়িয়ে যায়, স্প্রেড করে যাওয়ার পরে দেখা যায় কি ওই পা দিয়ে সমানে জল বেরোতে থাকে, পা দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি জল বেরোতে থাকে, কিছুতেই জল কমে। আমি বহু ডাক্তার দেখেছি, হসপিটাল বললো এই পা কমবে না, এই নার্ভ সব নষ্ট হয়ে গেছে, এই পা কিছু কমবে না, একটা শক্স কিনতে হবে, ওই শক্সটা পড়লে যদি কিছুটা ঠিক হয়, তবে সারা জীবনে ঠিক হবে না। অনেক ডাক্তার দেখেছি, হোমিওপ্যাথি দেখালাম, চলছে, কমে একবার, আবার বেরিয়ে, রাত্রিবেলা ঘুমাতে পারি না, দিনের পর দিন 1.5-2 বছর। তার লাস্ট 2022-এ 15ই নভেম্বর আমার ছেলের জন্মদিন ছিল। তা সেদিনকে পাস্টার জেমস এবং সিস্টার আমার বাড়িতে গেছিল আমার ছেলের জন্য প্রার্থনা করতে। তারপর আমি এখন বললাম কি যে পাস্টার আমার পাটা এরকম অবস্থা, আমার দেখুন। উনি পাটা দেখে বললো যে দেখে উনি প্রার্থনা করলেন, প্রার্থনা করে একটা তেলকে অভিষিক্ত করেছে, এবং তেলকে একটা অভিষিক্ত করলেন, তখন পাটা টোটালি বেশ ভালো ফোলা ছিল, প্রচন্ড ফোলা। তা ওইটা যখন নাকি খুব ব্যথা করতো, রাত্রে একদম ঘুমাতে পারতাম না। এবার কি হয়েছে, পরের দিন 16 তারিখ কথা বলছি, হঠাৎ দেখা গেল পায়ের ঠিক উপরটা আর কি, এই জায়গাটা একটা সেই সাদা একটা স্পট পড়ে গেছে। তা আমি প্রথম বুঝতে পারিনি। তা আমি যখন গিয়ে শুনলাম, আমার ওয়াইফ বলছে কি গো তোমার পায়ে ওটা কি হয়েছে, আমি কি হয়েছে জানি না, তো সাদা একটা স্পট। আমার স্ত্রী করলো কি ডাক্তারবাবুকে ফোন করতে গিয়ে জাস্ট হাত লাগালো, ওটা বাস করার পরে আমি দেখাচ্ছি আপনার, যেদিন উনি গেছেন তার পরের দিন সকালবেলা তেলটা লাগিয়েছি, সন্ধ্যার সময় দেখা গেল একটা সাদা স্পট, এবং সে বাবা সেটা বাস করলো। ভিতরের থেকে বলছি যে আজকে পাটার অবস্থা হচ্ছে এই জন্যই যে ওইটার জন্য ভিতরে সমস্ত এইগুলো কিছুতেই ব্যথা কমছিল না, আর পাটা কিছু ঠিক হচ্ছিল না। কিন্তু আজকে ওই পা আমি তো অনেক ম্যাক্সিমাম ঠিক হয়েছে, দেখুন কোনো জল ফল পড়া সব বন্ধ। হয়তো এখন ব্যথা হয় বা জ্বালা হয়, কিন্তু টোটালি আমার যে মেজর পোর্শন টোটালি ঠিক হয়ে গেছে। তা অসংখ্য ধন্যবাদ প্রভুকে যে এটা ঈশ্বর ছাড়া সম্ভব না।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2020 में एक अपने प्रॉपर्टी को दिए थे। उस समय उसे खरोच जस लगी थी, साइकिल से खरोच लगी थी। उसने तो एक चंगाई पाई थी अपने बेटे की, उसने तो एक चंगाई पाई थी। शैतान बहुत कोशिश की कि वो यीशु मसीह को ना जाने। जब वो खरोच पाए, हम लोग सबों को लगते हैं खरोच साइकिल से, पर इनकी खरोच कुछ अलग से थी। तो ये खरोच समझ के वो छोड़ दिए। और जब तूफान आया, जब घर में बारिश आई, घर भर गए पानी से, तो उसी पानी में रहते। और वो खरोच में वो पीप होते हैं, वो बढ़ने लगे और पाँव फूलने लगा। और जब पाँव फूलने लगा, वो चल नहीं पा रहा था। इसी उपरांत 15 नवंबर को पास्टर जेम्स को उसने फोन किया कि आइए मेरे घर आइए। पास्टर जेम्स के प्रोग्राम सब पैक थे। ये जिद कर पाए, जिद करने शुरू किया, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। फिर हम लोग नहीं गए उनके पास। उनके बेटे के जन्मदिन थे और उस जन्मदिन के उपरांत में जब उनके पाँव हम दोनों देखे तो बहुत ही, ये तो फट कर निकली। उसके पहले के पाँव जो था, किस तरह वो दिख रहा था और बहुत कष्ट में थे। तो इनके लिए प्रार्थना हुई और आशीष तेल उसे दिया गया था। उसने उस आशीष तेल को लगाया और जब सुबह वो उठे, वो इस जो देखे थे वो फट गया था। फट के कह रहे हैं कि वो जो सादा जो निकलते हैं वो चर्बी की तरह, मटन की चर्बी, उतना बड़ा निकला। तो उसने डॉक्टर को फोन किए, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और फिर जब डॉक्टर ने देखे तो डॉक्टर ने कहा तुम बच गए। हालेलुया। नहीं तो इनके पाँव कटे जाते, ऑपरेशन होता और उससे 1-1.5 लाख रुपए उन पर खर्च होता। तो शैतान चोर है, वो चोरी करता है, हमारे धन को चोरी करता है, हमारे शांति को चोरी करता है। पर परमेश्वर हमें शांति देते हैं, परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं। और उस चंगाई को पाकर ब्रदर अरुण मुखर्जी आज यहाँ खड़े हुए हैं। एक भी दाग नहीं दिख रहा है, एक भी फूला नहीं दिख रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। জয় যিশু সবাইকে। जय यीशु। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে আরেকবার আমি আমার জীবনের যে সাক্ষ্য, আমি কিভাবে প্রভু যিশুকে জানলাম সেটা বলার সুযোগ পাচ্ছি। প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি কিন্তু প্রভু যিশুর বিষয়ে, আমি বা আমার পরিবার কেউই প্রভু যিশুর বিষয়ে কিন্তু জানতাম না। কিন্তু 2014-তে, তখন আমি খুবই ছোট, আমার বয়স তখন 11 বছর ছিল আর আমি ক্লাস 6-এ পড়তাম। তো ফাইনাল পরীক্ষা হবে তার ঠিক কিছুদিন আগে, মানে অক্টোবর মান্থে এরকম সময় আমার জ্বর হয়, অনেক গাম ব্লিডিং, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। হতে হতে যখন ডক্টরকে দেখাই, তো যেটা কোনোদিন আশা করতে পারিনি সেই বিষয়টাই আমরা শুনতে পাই যে আমার ব্লাড ক্যান্সার, লিউকোমিয়া হয়েছে। তো সেই সময় ওই বিষয়টা শুনে আমি তো ছোট ছিলাম, আমিও কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে আমার জীবনটা হয়তো এখানেই শেষ, কারণ কারোর সাথে মিশতে পারবো না, দেখা করতে পারবো না, হয়তো পড়াশোনাও করতে পারবো না বা মৃত্যুও হতে পারে। একটা ছোটোখাটো ধারণা ছিল যেহেতু পড়াশোনা করছিলাম। আর ওই কথাটা শোনার পর আমার পরিবার বলতে আমার মা আর বাবা, তারাও যখন ব্যাপারটাকে শুনে তারাও হতাশা নিরাশায়
সমস্যায় পড়ে যায়, কারণ আমি হলাম তাদের একমাত্র সন্তান। আর আমার জীবনে এই বিষয়টা নেমে এসছে মানে তারা কি করবে, তারাও নিরাশ হয়ে গেছিল যে হয়তো আমার জীবনটা নর্মাল হবে না, বা যে যে স্বপ্ন আমি দেখেছি, আমরা দেখেছি, সেগুলো হয়তো সফল হবে না। তো এই বিষয় নিয়ে হসপিটালে ভর্তি হই। এবার তার মধ্যেই আমাদের পাড়ার পাশের পাড়ায় একজন আন্টি থাকেন, উনি এসে আমাদেরকে প্রভু যিশুর কথা বলেন। যেটা আমি বললাম যে তার আগে আমি প্রভুর কথা জানতাম না, কোনো ধারণা ছিল না আমার প্রভু যিশুর ব্যাপারে। তো যখন বাবাকে ফার্স্টে বলেন, সুসমাচার দেন, তারপরে এক মণ্ডলী থেকে এসে আমাদের বাড়িতে এসে আমার জন্য প্রার্থনা করা হয়। তখন আমি মানে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে হসপিটাল থেকে বাড়িতে এসেছিলাম, সেই সময় আমার জন্য প্রার্থনা করা হয়। আর প্রথমত মা বাবা ঈশ্বরের স্পর্শ পায়, মা আর বাবা বুঝতে পারে যে প্রভুর শান্তি, প্রভু কতটা শান্তি দিয়েছেন। কারণ সেই সময় তারা ফিল করতে পেরেছিল, কারণ তারা কোনোদিন ক্রস দেখেনি, কিন্তু দেখেছিল ঘরের ভেতরে একটা ক্রস ঘুরছে। আর তাদের এই শান্তিটা এসেছিল যে না, আমি সুস্থ হব এবং নতুন জীবন আজকেই পেয়ে গেছি। কারণ তার আগে পর্যন্ত মা বাবা আমার সামনে কোনোদিন কাঁদতেন না, কিন্তু তার আগে অন্যান্য সময় কান্নাকাটি করতেন, কারণ আমাকে নিয়ে চিন্তা করতেন। তো সেই সময় থেকে তাদের সেই হৃদয়ে নতুন আশা জাগে। আর আমি অনুভব করতে পারি যে প্রভু যিশু আমাকে স্পর্শ করেছেন। আমি বলি, মা বাবা তোমরা আর টেনশন করো না, আমার জীবন আজকে প্রভু যিশু নতুন করে দিলেন। আর এবার আমি হয়তো আগের জীবনে যা না করতে পেরেছি তার থেকেও বড় বড় কাজ এবার ঈশ্বর আমার জীবন দিয়ে করবেন। আর প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। আমি এখন তারপরে আস্তে আস্তে করে প্রভুর আশীর্বাদে আমার কোনো ক্লাসের গ্যাপ যায়নি। প্রত্যেকে অনেকের হয় যে ক্লাসের গ্যাপিং যায়, কিন্তু প্রভুকে ধন্যবাদ দিই, প্রভু আমার সাথে ছিলেন। আস্তে আস্তে আমি মাধ্যমিক দিই, তাতেও ভালো রেজাল্ট করি, উচ্চ মাধ্যমিক দিই, তাতেও ভালো রেজাল্ট করি। আর এখন বর্তমানে আমি বিএ হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি, সেখানেও ঈশ্বর ভালো সফলতা দিচ্ছেন। এবং তার সাথে সাথে আমার জীবনের যে প্রভুর সাক্ষ্য, সেই সাক্ষ্য শুনে আরও অন্যান্য যারা আছেন আমাদের ওখানে বা আরও অন্যান্য জায়গায়, তারা পর্যন্ত বা হসপিটালের বিভিন্ন জায়গায় তারা পর্যন্ত প্রভুর সাক্ষ্য শুনছেন। আর তারাও আমাদের বাড়িতে এসে মানে প্রার্থনা করছেন। একটা ছোট মতো করে মণ্ডলী সভা হচ্ছে, তারাও প্রার্থনা করছে, আরোগ্যতা পাচ্ছে, তাদের জীবনে টেস্টিমনি হচ্ছে এবং তারাও অন্যজনকে নিয়ে আসছেন। তো মানে আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। আমার জীবনে যে ক্যান্সার নামক এই রোগটা এসেছিল, এটা কোনো অভিশাপ নয়, কিন্তু এর মাধ্যম দিয়ে ঈশ্বর আমাকে অনেক ব্লেসিং করেছেন। আমি এটাকে ব্লেসিং হিসাবে নিয়ে আমার এটা এসেছিল বলে আজকে আমি এত ভালো, মানে সাধারণ মানুষ যারা মানে নতুন জন্ম পাওয়ার আগে যে লাইফটা লিড করে তার থেকেও বহুত গুণ ভালো লাইফ আমি এখন লিড করছি। আর প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদকে দেখতে পাই। আর এই সাক্ষ্য বাদেও আমার জীবনে হাজারো হাজারো সাক্ষ্য আছে, যেটা আমি কোনোদিনও বলে শেষ করতে পারবো না। তো প্রভুকে ধন্যবাদ দিই, কারণ তার বাক্যে বলে জিরোমীয় 33:6, দেখো আমি এই নগরের ক্ষত বাঁধিয়া ইহার চিকিৎসা করিব, তাহাদিওকে সুস্থ করিব ও তাহাদের কাছে প্রচুর শান্তি ও সত্য প্রকাশ করিব। আজকে ঈশ্বর আমার পরিবারকে, আমাকে শান্তি দিয়েছেন, আরোগ্যতা দিয়েছেন এবং প্রতিটা মুহূর্তে তিনি আমাদের সাথে সাথে ছায়ার মতো রয়েছেন। প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। इस बेटी लिया छोटी सी थी, और इस छोटी बच्ची महसूस कर पाई मौत को। उसे पता था कि उसे ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया, और उसे पता था कि ये ब्लड कैंसर उसे मौत की ओर ले जाएगी। परमेश्वर को महिमा हो कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के डिसाइपल ने इनके पास पहुंचे और उनको बताया। और जब प्रार्थना हुई, इनके माता पिता
सामने में नहीं रोते थे, पीछे रोते थे, इनके सामने नहीं ये करते थे, दिखाते थे कि उन्हें भी दुख है। जब परमेश्वर के डिसाइपल इनके पास आए और प्रार्थना हुई, तो इसे भरोसा था, इसे विश्वास था कि वो छलवा पाएंगे। और इनके परिवार में इनके माता पिता को अनुभव हुआ कि हाँ, यह यीशु मसीह है, और वो शांति पाए। और ये बच्ची जो एक लौती बेटी है, और जानते हैं कि मम्मी पापा का एक लौता बच्चा अगर खो जाए तो कैसा लगता है। परंतु परमेश्वर ने इस परिवार को एक टेस्टिमनी के रूप में इन्हें बचाया, ताकि एक टेस्टिमनी दे। और जब ये दौड़ते दौड़ते आए अपने टेस्टिमनी को देने के लिए, तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। और अब तक वो कहती है कि जो नॉर्मल जिंदगी जो जीते हैं, उससे बढ़कर मेरे जीवन में हम आनंद है, और उससे बढ़कर हम जी रहे हैं। और इसके द्वारा, इस टेस्टिमनी के द्वारा बहुत लोगों अपने जीवन को बदलने शुरू किए, और बहुत लोग यीशु मसीह को जानने लगे। यह है टेस्टिमनी प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद। मेरा नाम इमानुएल सुरीन है। मेरे पापा का नाम बेंजामिन सुरीन है। उनका केस जो स्टार्ट हुआ था वो 2020 में स्टार्ट हुआ था, अगस्त महीना में। उनको बुखार होता था। बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे ही रहता था, 100 डिग्री के नीचे, 100 डिग्री के ऊपर कभी जाता नहीं था। डॉक्टर को दिखाते थे तो बोलते थे कि अगर ये बुखार बढ़ जाता है तो फिर कोविड टेस्ट करा लेना, वरना ये जो दवाई दे रहे हैं उनको चालू रखना। दवाई तो दे रहे थे, लेकिन उनका बुखार कम नहीं हो रहा था। ऐसे चलता रहा। 1-2 महीना बीत गया, तो फिर जाके हॉस्पिटल में दिखाया। हम लोग का जो BNR हॉस्पिटल है गार्डन बीच में, वहाँ दिखाया। उधर के MD ने एकदम ठीक तरीके से पकड़ लिया कि पापा को कैंसर हुआ है। तो उन्होंने कुछ टेस्ट दिए, अल्ट्रासोनोग्राफी का टेस्ट दिया। उसमें पता चला कि जो राइट किडनी है उनका पूरी तरह डैमेज हो चुका है। ट्यूमर पूरा फैल गया है किडनी में, और ऑपरेशन एकदम ज़रूरी हो गया था उस समय। अब क्या हुआ कि ये टेस्ट तब हुआ जब पूजा हॉलीडेज शुरू हो रहा था। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि पूजा के समय हॉस्पिटल बंद हो गया था, स्टाफ कम थे, तो पापा को एडमिट नहीं दिए उस समय। हुआ ऐसा कि पूजा हॉलीडेज के बाद एडमिट हुआ, फिर उसके बाद और टेस्ट्स हुए, ब्लड टेस्ट्स हुए। ऐसा करते करते 3-4 हफ्ता और चला गया, और तब जाके ऑपरेशन हुआ नवंबर आसपास में। ये फिर जो ऑपरेशन से किडनी जो बाहर निकाला गया था उसका टेस्ट किया गया था। बायोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि जो कैंसर हुआ था वो ग्रेड 4 है, और ये बाकी जगह भी फैल चुका है। अब ये जो कैंसर था ये लंग्स में फैला हुआ है। तो एक्सरे रिपोर्ट में पता चला कि उनका जो लेफ्ट साइड का जो लंग्स है उसमें एक ट्यूमर था इतना बड़ा, और राइट साइड में इधर और इधर 3 ट्यूमर थे छोटे छोटे। तो डॉक्टर ने कहा कि इनका कीमोथेरेपी नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो बॉडी है सूटेबल नहीं है, एक किडनी नहीं है, इनको कीमो नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने टैबलेट्स दिए, कैप्सूल्स दिए उनको, और वो मेडिकेशन चलता रहा।
3 हफ्ते तक खाना था, 3 हफ्ते हर दिन एक कैप्सूल, बीच में ब्रेक, फिर 3 हफ्ते वैसा चलता रहा। क्या हुआ कि उस समय बहुत लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया कि मेरा पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं यही सोचता हूँ कि उस समय लॉकडाउन का समय था, सब लोग एक दूसरे से दूर रहते थे, किसी से मेल मिलाप नहीं होता था, लेकिन कैसे पापा की इस स्थिति के कारण सब लोग एक साथ मिलजुल के प्रार्थना करने लगे प्रभु यीशु से कि पापा ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। क्या फिर 2021 आसपास फरवरी में वापस एक्सरे रिपोर्ट लिया गया था। उसमें पता चला कि जो राइट साइड का जो लंग था उसमें से सारा ट्यूमर खत्म हो चुका था और लेफ्ट साइड में बस एक बाकी था। अब ऐसा हुआ कि उस समय वापस कोविड आया और पापा भी बीमार हो गए थे, पापा को भी कोविड हो गया था, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा उस समय। अब क्या हुआ कि इनका हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो गया था, तो उनको ब्लड दिए थे, ब्लड कैंप से ब्लड खरीद के दिए थे और उस ब्लड से उनको इन्फेक्शन हो गया। ये इन्फेक्शन के कारण जो ट्यूमर था लेफ्ट साइड में वो बढ़ गया और अभी का जो रिपोर्ट है उसमें पता चला है कि जो लेफ्ट लंग है वो आधा ट्यूमर से भरा हुआ है, राइट लंग में भी वो थोड़ा सा फैल चुका है। तो उस समय भी डॉक्टर चेंज हो गए थे बीच में, तो डॉक्टर ने कहा कि ये टैबलेट वगैरह से नहीं होगा, इनको केमो देना ही पड़ेगा। तो केमो स्टार्ट हुआ, 3-4 महीना चलता रहा और 3-4 महीना में ऐसा हुआ कि केमो लेते थे और ब्लड कम हो जाता था, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता था। तो हर बार जब भी केमो के लिए जाते थे ब्लड लेना ही पड़ता था। तो फिर बीच में और ऐसा हुआ कि केमो का जो दवाई होता है वो भी आना बंद हो गया। अब बंद हो गया तो ऐसा 1 महीना बंद रहा वो दवाई। और तो फिर हम लोगों ने एक्सरे नहीं, पेट सीटी स्कैन करवाए। उसमें पता चला कि जो ट्यूमर है वो और बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देख के भी पता लगाया कि जो केमो चल रहा है उससे काम नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 महीना का ब्रेक में भी वो ट्यूमर अगर बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो कीमोथेरेपी काम नहीं कर रहा। तो वो दवाई आने के बंद होने से भी ये पता चला कि वो दवाई काम नहीं करेगा और हम लोगों ने इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट चेंज किया। तो यही पता चलता है कि प्रभु यीशु कैसे काम करते हैं। कभी कभी डायरेक्टली काम नहीं करते, कभी कभी इनडायरेक्टली भी काम कर जाते हैं। दवाई रुक गया तो हमें ये पता चला कि वो दवाई से काम नहीं होने वाला है और हम लोगों ने इमीडिएटली ट्रीटमेंट चेंज हो गया पापा का। और अभी ऐसा है कि उनका जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे उनका जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो मेंटेन हो रहा है और उनका जो वीकनेस था पहले वो भी नहीं रहता है। अभी वेट लॉस हो चुका है उनका। पहले जब 2020 में हुआ था उनका वेट 60 था, अभी 48 हो चुका है, लेकिन उनका जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ चुका है। वो अब चल फिर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और आगे क्या होता था कि अगर नहाना होता था तो किसी को साथ ले जाना पड़ता था बाथरूम में, खुद नहा नहीं सकते थे, अभी खुद से नहा लेते हैं।
तो यही है कि प्रभु यीशु हमारे ज़िंदगी में सिर्फ डायरेक्टली काम नहीं करता है, इनडायरेक्टली भी कुछ ना कुछ करके किसी को भेज के काम कर जाता है। यह हमें दिखता नहीं है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ, प्रभु यीशु ने डॉक्टरों के थ्रू हमारे जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया उनके थ्रू, और ये दवाई रुकने की वजह से भी ट्रीटमेंट चेंज हुआ है, इसके थ्रू भी काम किया है हमारी ज़िंदगी में। जनवरी महीना का बात है। और उसका प्रेशर, शुगर या बहुत सारा बीमारी है, और उसका ये पैर उंगली में थोड़ा सा कोई चीज़ से वो भी लग गया था, किंतु वो ना छूट जाएगा करके वो इलाज नहीं कर रहा था, और ऐसे घूमते फिरते ऐसे ही घूम रहा था। तो उसका ना वो बढ़ते गया, वो और ऐसा बढ़ा कि वो पैर का कानी उंगली उसमें इन्फेक्शन हो गया, उसको भी नहीं पता। और उसको उतना बढ़ गया, उसके बाद उसका पैर ऊपर से फूलने लगा, सब कुछ हुआ। फिर भी वो इतना नहीं समझ सक रहे कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है। तो अचानक जब बहुत जोर से फूल गया, उसका पैर फूल गया, और डॉक्टर उसको अब दिखाएंगे का कैसे सोच रहा है, और डॉक्टर दिखाने भी गया। तब एक दिन हमको बुलाया उन लोग कि आओ तुम थोड़ा सा प्रार्थना कर देना। हम बोले क्या प्रार्थना करेंगे, हम तो जानते भी नहीं है, इतना बड़ा पेशेंट के लिए अकेले तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, किसी के साथ करूँगा ऐसा मैं सोच रही हूँ। फिर भी उन लोग है कि नहीं आओ बोल के। फिर ये मेरी दी आई है, उसको हम बोले कि संडे का दिन है, कैसा करेंगे, हमको तो प्रार्थना करने का मन करता है, किसी के साथ मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे ऐसा करके। तो ये बोली कि चलो एक भाई है, एक पीटर का घर दिया कि वहाँ प्रार्थना होता है तो हम लोग जाते हैं, तो ऐसे कहते। तो अचानक से वो जो भाव पेशेंट था उसको तो नहीं पता है, पर हम लोग प्रार्थना के लिए ऐसे चले गए। तब हम जेम्स साहब को बोले बताए कि ऐसा ऐसा है बोल के, वो उसी दिन प्रार्थना में वो चढ़ाया, सब चीज़ को बता दिया, तो वो चढ़ा लिए प्रार्थना में। तब दूसरा दिन वो डॉक्टर के पास गया, तो पूरा पाँव तो पूरा पक गया था, उसका तो ऑपरेशन करना ही पड़ता, पर शुगर प्रेशर का इतना हाई था कि वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। जब ये प्रार्थना किए एक दिन, उसी दिन से उसी रात को वो सब चीज़ काम हो गया, शुगर का सारा चीज़ काम हो गया। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो वो उसको ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर बोला कि सब कुछ काम है, ऑपरेशन करने से सक्सेस हो गया। पूरा उसका ऑपरेशन किया, काट कूट पूरा ऐसे करके उसका पीठ को निकाला, और जिस दिन से प्रार्थना चालू हुआ उस दिन से सब चीज़ सक्सेस होते गया, और आज उसका घाव पूर्ण रूप से छूट चुका है, और वैसा ही अभी ये हाल नहीं, वो गाँव चला गया था शादी। हम बोलते हैं घाव है, बोलता है पहले चला गया से फिर शादी मनाने गया है, ऐसे फिर से दोबारा फिर लगा चला आएगा ऐसे। और हम ना घर में आया हम बोल रहे हैं तुम लोग चला गया तो तेरा घाव पूरा ठीक हो गया ऐसा। तो वो खोल दिए पूरा पट्टी, और हम उसको पूरा देखने के लिए कैसे लगा छूटा है कि नहीं, और ये घूम चल रहा है ऐसे। गाय तो सचमुच कुछ भी एक दाग भी नहीं है, पूरा घाव छूटा हुआ है। मैं को धन्यवाद देती हूँ, मुझे भी साक्षी वो आता तो और अच्छा से देता से, पर अपना हिस्ट्री हम जितना जानते हैं, और हमको भी सारे पतन बहुत ये लग रहा था आखिर कब तक यीशु से छल करते रहो बोल के। अभी दूसरे साथी मेरे मन को भी बाकी प्रभु क्या छल कपट करते हैं हम लोग, ऐसे हमारा डर करते क्या छल करते हैं सब समय हम लोग, ऐसे हम अपने आप में सोच रहे थे। और साक्षी के बारे में सोच रहे नहीं आया तो हम देंगे करके ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार मैं इस मंच पे आई हूँ। मैं एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ एक बच्ची के बारे में। 3 महीने की पुरानी बात है। एक बच्ची की मम्मी मेरे पास आई, वो आज आने वाली थी लेकिन आज नहीं, किसी कारण नहीं आ सकी। वो बहुत दूर में रहती है, सीनाई चर्च भी है, पर चर्च मैटर नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर के काम कैसे होते हैं वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। तो 13 साल की वो जो बच्ची थी, उसका ब्रेस्ट में ट्यूमर था, 3-4 ट्यूमर था।
तो वो बहुत दिन से शेयर कर रही थी कि मेरा बच्चा कैसा हुआ है। तो वो एलोपैथिक दिखा रही थी, फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं था, तो वो प्रार्थना भी करती थी और मेरे को बोलती भी थी और बोली कि इतना पैसा खर्चा हो जा रहा है, उसका डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना होगा। तो मैं बोली कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। रोज दिन वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाती, वो ट्रीटमेंट का सारा टेस्ट कराती, लेकिन कुछ भी दवाई नहीं देता। ऐसे ही करते करते 8 महीना हो गया, दवाई कुछ नहीं पड़ा। उसका हस्बैंड उसको डांटने लगा, बोल रहा है कि होम्योपैथिक में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग एलोपैथिक करेंगे। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ये तो बहुत बड़ा मसला है, ये लोग आपको छोड़ के वो लोग दवाई के पीछे दौड़ रहे हैं, आप ऐसा उपाय करिए कि उसे छोड़ के वो आप लोग को ध्यान दे। तब मैंने प्रार्थना किया कि ऐसा कुछ उपाय निकालिए। तो जैसे उसका बेड के लिए लोग अप्लाई किया, ऑपरेशन करेगा बोल के, उससे पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु उनके बेड मत दीजिएगा, बेड देने से तो ऑपरेशन करेगा, परमेश्वर आप वहाँ काम करिए। तो अचानक खबर आया कि उसको बेड ही नहीं मिल रहा है। इतना महान तरीका से, जैसे ब्रदर ने बताया अभी कि इनडायरेक्ट वे से परमेश्वर काम करता है और ये बीमारी को जो उत्पन्न होता है उसको कैसे परमेश्वर दूर करता है, लोगों को खड़ा करता है। तो परमेश्वर ने मुझे उस जगह इस्तेमाल किया, मुझे प्रार्थना के चलते मुझे अगुवाई हुआ, उसने बोला मुझे प्रार्थना करने के लिए। जैसे मैं प्रार्थना की, परमेश्वर बोल रहा है इस बच्चे के द्वारा बहुत सारे काम होंगे। तो मैं, जैसे हम लोग होम्योपैथी इग्नोर कर रहे थे, मैं प्रार्थना करके वो डॉक्टर के पास लेके गई, वहाँ से दवाई लिया, प्रार्थना किया, उसके बाद वो दवाई खाना शुरू की। 4 दिन उसने खाया, उसका ट्यूमर छोटा होने लगा। तो इस तरह से उसका ट्यूमर छोटा होते जा रहा है। और रिसेंटली मुझे पता चला, संडे को उन लोगों ने गवाही दी अपने चर्च में। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी तकलीफ हो, सोचिए परमेश्वर आपको नॉक कर रहा है, आपको तैयार होना है। जब परमेश्वर के बच्चे आप हैं, अगर हैं तो डरिए मत, खड़ा होइए और परमेश्वर को प्रार्थना करिए, याद करिए और तैयार होइए और आगे बढ़िए। इसी गवाही के साथ मैं करती हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। मेरा नाम मंजू भूट है और मैं बेलूर मठ से आई हूँ। लेकिन ये टेस्टिमनी देने से पहले मैं एक वचन को बोलूँगी जिसके द्वारा एक समझ है, जो यशाया उसका 55 अध्याय उसका 10 और 11 वचन कहता है, जिस प्रकार से वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, यशाया 55 उसका 10 और 11 वचन। जिस प्रकार से वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं, वहाँ से यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले की बीज और खाने वाले की रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उनका भेजा है वो सफल करेगा। आमीन। ये वचन इसलिए मैंने कहा क्योंकि पास्टर जी आज से करीब बहुत साल हो गए, शायद 15 साल 16 साल पहले की बात है। वो हमारे यहाँ हम लोग का घर प्राय आते थे वचन लेकर, और उस समय हो सकता है वो बीज बो रहे थे और उस बीज काम कर रहा था। और 2020 में वो बीज ऐसे हुआ कि वो बीज बनकर एक डर को उत्पन्न किया। जब हमारे यहाँ कोरोना स्टार्ट हुआ
और कोरोना ने एक डर को उत्पन्न किया कि चलो क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में आए और हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि हम लोग सब घर में बंद हैं। और वो बीच हम लोग का वचन को हम लोग बाइबल उठाएं और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग को शेयर करना शुरू किए। और आज वो कंटिन्यू चल रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, और बहुत लोग जुड़ रहे हैं वहाँ पर, और वचन के द्वारा बहुत चंगाई और छुटकारा सचमुच प्रभु वो काम तो करता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ने बोया, हमने नहीं सुना और वो काम नहीं हुआ, उस जगह मैंने व्यर्थ वचन को बोया, लेकिन प्रभु सचमुच काम करते हैं। प्रभु के दास ने उस समय बहुत परिश्रम हमारे लिए किए थे, और हम लोग वचन को मैंने उस समय ग्रहण बहुत करती थी। और हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग कलीसिया में पाए जाते हैं वहाँ पर संडे छोड़ के और कोई वचन नहीं होता है, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए उपाय करता है। आज प्रभु आज मुझे अपने वचन के लिए खड़ा किया है। मैं हर दिन वचन बांटती हूँ। मैं खुद से अद्भुत होती हूँ कि मैं लोगों को वचन बांटती हूँ, जो कि मैं वचन से दूर थी, लेकिन आज वचन के साथ में खड़ी रहती हूँ। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और मैं पहली गवाही इस जगह पर दे रही हूँ। मैंने कभी किसी जगह खड़ी होकर गवाही नहीं दी थी, पहली बार प्रभु के लिए खड़ी हूँ कि आज प्रभु ने मुझे कहाँ मैं थी और मुझे कहाँ लेके आप लोगों के बीच में खड़ा किया। इस जगह पर प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि प्रभु अद्भुत है। वो कहता है मैं तुझे धूली में से उठाकर अधिपतियों के साथ बैठाता हूँ। वो प्रभु सचमुच महान है। वो कभी भी हम लोग का सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन उससे बढ़कर आत्मिक चंगाई है। जिस रोज हम आत्मिक चंगाई को पा लेंगे तो कोई भी शरीर जो हमारे ऊपर आती है बीमारी बनकर, वो हमें हावी नहीं होगा। तो प्रभु का धन्यवाद है। ये मेरी छोटी सी गवाही। धन्यवाद।